officially starting our webinar. So welcome to our second webinar of the speech map. And we are proud to present you since it's Dysphagia Awareness Month, and we have shared a lot of knowledge regarding previous posts are about dysphagia. So in this particular webinar, our purpose is to just explain to you what actually dysphagia is and to just bust some myths. And in future, we are going to start series whenever you have any kind of difficulty so that you guys can send your recommendations and we will be happy to uh, answer all your queries. So now, before we start, I will request Ms. Sahar Ilyas and Ms. Fariha Bukhari to introduce themselves. As for me, I'll introduce myself briefly. So my name is Misha Irshad. I'm a speech language pathologist, and I've been working in the field for past 7 years now. And it gives me great joy to create this platform with two of my who were my seniors and mentors. So, and now we are partners. So it gives me immense joy to share this platform with them. And my area of specialty is feeding and swallowing. So I'm handing over to Ms. Sahar Ilyas so that she can introduce, and followed by Ms. Fariha Bukhari will introduce herself. Over to you, Ms. Sahar. Assalamu alaikum. I'm Sahar Ilyas. I'm a speech and language pathologist. I have over 9 years of experience, and my area of interest is early intervention and helping children with communication difficulties and language disorders and speech disorders. Thank you. Over to you. Assalamu alaikum. My name is Fariha Bukhari and I'm a speech language therapist by profession, and I have almost 10 years experience in my field, and I'm dealing with the pediatric population and adult population, giving speech therapy services online right now nowadays, and one of the co-founder of the Speech Map blog. Both of you. Thank you so much, both of you, for introducing yourself. So everyone, thank you for joining us. I've been seeing people are just still joining in, so don't worry, I'll keep adding you in the webinar. And before we start, here's our intro video, and followed by we'll share our presentation. So I'm sharing my screen in a minute. So this was our intro video. So starting with, so we have divided the presentation into 3 parts. Ms. Sahar Ilyas will take the lead and followed by Ms. Fariha Bukhari. And in the end, the last part will be covered by me. So as you have seen the objectives of the webinar, so let me just share the PowerPoint presentation that we have prepared for today. Also, just send me messages in the chat box so that I would know that whoever can see the screen or not. Okay, here it is. And can everyone see the screen? Just answer the question in the chat box so that I'm well aware that people are. Okay, thank you. Thank you for your understanding. Okay, Ms. Sahar, over to you. Okay, so let's get started with our second webinar that is about dysphagia. So first, we'll discuss the definition of dysphagia, what dysphagia is. Dysphagia जो हमने अपने BS में या मास्टर्स में या प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज सुनी कि dysphagia क्या होते हैं, वो कॉमनली हम यही सुनते हैं कि it is difficulty in swallowing, or we could say inability to swallow, or it's a swallowing disorder. But
that is not correct. Swallowing dysfunctioning and dysphagia ये दो different चीजें हैं. And now we'll discuss the correct definition of dysphagia, जिसको अभी तक बहुत unclear है, at least हमारे पाकिस्तान में बहुत misrepresent किया जाता है dysphagia की actual meaning. So the correct definition of dysphagia is a symptom of swallowing dysfunction that occurs between mouth and stomach. आपके मुंह से लेके मेदे तक कोई भी निगलने की खराबी होती है, उसकी एक अलामत होती है dysphagia. Dysphagia itself is not a swallowing disorder and dysphagia itself is not a swallowing inability. ये इस disorder की एक अलामत, एक symptom, and there is a difference between dysphagia and swallowing dysfunctioning. जैसे अभी मैंने बताया dysphagia एक symptom है swallowing dysfunctioning का या swallowing disorders का. और swallowing disorders क्या होते हैं, swallowing dysfunctioning क्या होती है कि कोई inability to swallow, difficulty in swallow, or inability to eat, or inability to eat, drink food or liquid. This is what swallowing dysfunctioning is. अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि it's a symptom. जब कोई भी बीमारी होती है, किसी भी बीमारी की हम बात करते हैं तो हम उसे दो चीजों में डिवाइड करते हैं, साइंस और सिम्टम्स. सिम्टम एक चीज क्या होती है जिसको हम डिस्पेशिया कह रहे हैं, वो सिम्टम एक ऐसी चीज होती है जो समथिंग दैट इज फेल्ट इंटरनली, जो कोई इंसान, कोई मरीज अंदर से जो फील कर रहा होता है, उसके जो एहसास होते हैं उस बीमारी को लेके, वो सिम्टम होते हैं. और उसके बरक्स साइंस क्या होते हैं, साइन वो चीज होती है दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी ऑब्जर्व एक्सटर्नली, कोई अपनी आंख से वो चीज देख सकता है, वो साइंस होते हैं. जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्लू में जो जो चीजें हाईलाइट है वो साइंस, जो एक सामने वाला बंदा देख सकता है. सिम्टम्स जो रेड में है वो सिम्टम्स है जो ये पेशेंट है वो अंदर से फील कर रहा है. अब जैसे टेम्परेचर है, कोई भी हाथ लगाएगा, आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा दैट इज अ साइन. उसके बाद हार्ट रेट आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा इट्स आल्सो अ साइन, क्योंकि ये चीजें हम एक्सटर्नली में देख सकते हैं. कलर किसी का चेंज हो रहा है, पेल हो रहा है, या किसी और तरह लिप्स ब्लू हो रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं, दैट इज आल्सो अ साइन. बट सिम्टम, अगर कोई पेशेंट, ये किसी को बुखार है और अंदर से डिजीनेस हो रही है, चक्कर आने हैं, वो हमें वो खुद बताएगा डिजीनेस इज समथिंग जो हम नहीं देख सकते या महसूस नहीं कर सकते. उसके साथ साथ अगेन नॉजिया, अगर किसी को फील हो रहा है, हमें नहीं पता चलेगा कि किसी को नॉजिया फील हो रहा है अनटिल और अनलेस वॉमिट ना आ जाए. वॉमिट, नॉजिया इज अ सिम्टम एंड वॉमिट जो है उसका एक साइन. ठीक है. उसके बाद अगर किसी को पेन हो रही है, हमें नहीं पता चल सकता कि किसी को अंदर कहीं पेन हो रही है, क्योंकि अगेन वो पेशेंट फील कर सकता है. अगर कोई थका हुआ है, फटीग है अपनी बीमारी से, तो पेशेंट आपको बता सकते हैं मुझे मैं थका हुआ हूँ. सो अगेन दिस इज व्हाट सिम्टम इज. Anything that is felt internally by a patient, by a person, अंदर जो ये महसूस करे वो symptom. And dysphagia भी एक symptom है जो अगर किसी को swallowing dysfunctioning होती है, उसकी जो अंदर एहसास, उसकी जो feelings होती हैं और that is being felt internally, that is dysphagia related. और dysphagia की term जो है हमारी प्रोफेशनल्स और हमारी यहाँ पे हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह रिसर्च नहीं हुई, बट जनरली 38% ऑफ द टाइम डिस्पेशिया जो है इनकरेक्टली इस टर्म को एक्सप्लेन किया जाता है और इनकरेक्टली यूज किया जाता है. जब हम डायग्नोसिस देते हैं, हम बहुत फ्री हैंड करके डिस्पेशिया लिख देते हैं, बट डिस्पेशिया का डायग्नोसिस आप तभी दे सकते हो जब आप इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट करो और चीज properly देखो. only then you can write down the dysphagia, otherwise you just write के swallowing difficulties आ रही हैं, swallowing में कोई मसला आ रहा है, you cannot write dysphagia right away. So dysphagia related जो symptoms हो सकते हैं, because this is something जो एक patient अंदर से feel करता है. We can move to the next slide now. तो उसमें ये चीज होती है कि dysphagia related symptoms क्या आपको पेशेंट बता सकता है. वो आपको ये बता सकता है कि मुझे swallowing is stressful for me, yeah, it is painful for me, or the patient could say कि this is something, अगर मैं कोई liquid ले रहा हूँ या solid ले रहा हूँ, या अगर मैं कोई pills ले रहा हूँ जो गोली होती है वो खाता हूँ, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन चीजों को निगलने के लिए. या अगर आपको पेशेंट बता रहा है कि अगर मुझे अब बाहर जाके खाना अच्छा नहीं लगता swallowing dysfunctioning की वजह से, या मुझे किसी के सामने खाना अच्छा नहीं लगता, मैं इस चीज
परहेज करता हूँ कि किसी के सामने मत खाऊं, या मुझे अगर मैं गोली देखता हूँ, अगर कोई पिल है तो मुझे उसको देख के थोड़ा डर लगता है, कि मुझे लगता है कि ये पिल हैंडल करना निकलना मुझे मुश्किल होगी। और मुझे अगर लेट्स सपोज कोई पेशेंट आपको कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरा खाना गले में फंस जाता है, या मेरी कोई चीज मैं जब भी खाता हूँ मुझे लगता है यहाँ फंस जाती है, ये भी एक सिम्टम होगा उसका। अगर कोई आपको कह रहा है कि मुझे अब मैं खाना देख के मुझे खुशी नहीं होती, या मैं प्लेजर महसूस नहीं करता खाना खाते हुए, तो ये सब सिम्टम्स हैं जो डिस्पेजिया रिलेटेड। दिस इज व्हाट डिस्पेजिया इज एक्चुअली। अब अगर हम साइंस की बात करें, जो कॉम्प्लिकेशन स्वॉलिंग डिसफंक्शन की हो सकती है, तो उसमें साइंस ये हो सकते हैं मैल न्यूट्रिशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी, निमोनिया हो गया, इवन डेथ होगी। तो दीज आर द थिंग्स, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं स्वॉलिंग डिसफंक्शन की, डिस्पेजिया से डिफरेंट चीज होती हैं। और ये कुछ चीजें, अगर कोई मैल न्यूट्रिशन हो रही है, कोई कमजोर होता जा रहा है, या निमोनिया हो गया, डेथ हो गया, दीज थिंग्स कैन बी सीन। बट डिस्पेजिया रिलेटेड चीजें वो होती हैं जो इंटरनली पेशेंट स्वॉलिंग डिसफंक्शन को लेके महसूस कर रहा होता है। और डिस्फेजिया इज अ कॉमनली अकरिंग सिम्टम ऑफ मेनी डिसीज। डिस्फेजिया बहुत सी डिजीजेस का एक अलामत होती है, एक सिम्टम होता है। और डिस्फेजिया मर्द औरत दोनों को हर उम्र की, जरूर बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, ये हर उम्र में ये डिस्फेजिया देखा जा सकता है। अगेन एक और की बात, अगेन फिर से, डिस्फेजिया इज अ सिम्टम नॉट अ साइन। अब हम, जैसे आपने डिस्फेजिया और स्वॉलिंग डिसफंक्शन में डिफरेंस देख लिया है, अब मैं थोड़ा उन फेजेस की तरफ जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्फेजिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्वॉलिंग डिसफंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ स्वॉलिंग क्या है, और जो अक्सर हमें 4 फेजेस पढ़ाए भी जाते हैं, जो सबको पता है, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, प्रोफेशनल सुन रहे हैं, अगर किसी को डिस्फेजिया है, किसी फैमिली मेंबर को डिस्फेजिया वो सुन रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि 4 प्रोसेस होते हैं, जिसको ओरल प्रिपरेटरी, ओरल ट्रांजिटरी, फेरेंजियल, एसोफेजियल फेज कहा जाता है। और इसका सबको डिटेल में पता है, गूगल पे आपने सब पढ़ा। ओरल प्रिपरेटरी पे आपके सामने खाना आया, आपकी स्लाइवेशन हुई, आपका मुंह एक चीज के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ओरल ट्रांजिटरी में क्या होता है, चूइंग हुई, आपने आपके टांग ने आपका खाना बोलस बना, पीछे की तरफ धकेला, पुश किया, फिर फेरिंग्स पे गया, फेरिंजियल फेस, फेरिंग्स ने स्क्वीज किया खाने को, एसोफेजियल एसोफेगस की तरफ गया, एसोफेजियल ओपनिंग हुई, और एसोफेजियल में वो ओपनिंग से प्रोपेलिंग मूवमेंट से एसोफेगस की जो आपकी खाने की नाली होती है, खाना नीचे की तरफ गया, नीचे की ओपनिंग ओपन हुई, और खाना आपके स्टमक में चला गया। हमने हमेशा यही प्रोसेस पढ़े हैं स्वॉलोइंग के। बट अब आपको पता है कि चीजें अपडेट हो रही हैं, हर चीज दिन ब दिन चीजें नई से नई आ रही है, रिसर्चेस होती रहती हैं। बट अभी भी हमारे यहाँ पे हम उन्हीं 4 फेजेस पे चल रहे हैं। तो अब उन फेजेस के अलावा स्वॉलोइंग को, या अगर आप डिस्फेजिया को एक्सप्लेन करें, तो उसके 5 सब सिस्टम्स होते हैं। और ये 5 सब सिस्टम्स पे इसलिए अब डिवाइड किया गया ताकि स्वॉलोइंग या डिस्फेजिया को आप और ध्यान से समझ सकें, और उस चीज को जब डायग्नोसिस दे रहे हो तो प्रॉपर जो स्पेसिफिक चीज है उसको पॉइंट आउट करके आपको पता चला एग्जैक्ट मसला कहाँ है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो ये 5 सिस्टम्स है जिसकी बेसिस पे अब स्वॉलोइंग को, डिस्फेजिया को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अपने सामने देख रहे हैं, कॉग्निटिव, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलर। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन 5 का थोड़ा रिव्यू दूंगी। मस्कुलर अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें, तो मस्कुलर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इट्स रिलेटेड टू योर मसल्स। जो भी आपके पट्टे, आपके मसल्स, आपके मुंह से लेके आपके मेदे तक इन्वॉल्व हैं, इसमें वो चीजें जब आप खाना मुंह में डालते हैं, आपके लिप्स बंद होते हैं, आपके ये जॉस जो है च्यू करते हैं चीजों को, टांग आपके पीछे की तरफ पुश करती है खाने को, और इस सब में आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। खाना फिर आपका यहाँ फेरिंग्स आया, फिर खाने की नाली में गया और आपके मेदे में चला गया। बट अगर यहाँ पे किसी को मस्कुलर वीकनेस हो, अगर इसके मसल्स और ये सारे मसल्स एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में काम कर रहे होते हैं, एक हार्मनी में काम कर रहे होते हैं, एक रिदम में काम कर रहे होते हैं, तभी एक हम महफूज तरीके से कोई चीज स्वॉलो कर पाते हैं, कोई चीज निकल सकते हैं। बट अगर किसी की मस्कुलर वीकनेस है इधर, या किसी की यू नो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मसल्स एक ऑर्डर में, एक तरतीब से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो आपका खाना ये हो सकता है कि आपकी सांस की नाली में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एस्पिरेशन हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपकी ये जबड़े के जॉस के मसल्स प्रॉपर काम नहीं करे, आपने किसी ने दवाला डाला है, आपने डाला, आपको नहीं पता, और तो आपने एज इट इज निकल लिया,
तो आपके गले में चीज फंस सकती है और आपका चोक हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी सांस लेने की एबिलिटी रुक सकती है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। और कभी कभार जब अगर हम जनरली बात करें, बीमार होते हैं हम या फ्लू वगैरह हुआ होता है, तो हमारे जनरली पूरी बॉडी हर सिस्टम स्लो हुआ होता है और उसके साथ साथ हमारी ये मसल्स भी उस तरह प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते। तो इसमें अक्सर हमें क्या करना चाहिए, या हम कर भी रहे होते हैं कि हम अब बीमार हैं, फ्लू है, खांसी है, कोई भी ऐसी बीमारी है, तो हम ऐसी डिजाइन खा रहे होते हैं जिसमें ज्यादा चबाना ना, जैसे कि दलिया हो गया, ब्रेड हो गए, या हमारे सूप्स हो गए, इस तरह की चीजें हम प्रेफर करते हैं। इस टाइम पे हमारा नहीं दिल कर रहा होता हम कोई चीज मसालेदार चीजें खाएं या हम कोई स्टेक्स लें, क्योंकि हमारी बॉडी में उतनी पावर नहीं है। यही हमें करना चाहिए अगर हमें कोई बीमारी या कोई बुखार वगैरह है, ताकि ज्यादा इधर स्ट्रेस ना पड़े और ज्यादा च्यू ना करना पड़े और आराम से आप निकल सकें। नेक्स्ट मस्कुलर के बाद हम जिसकी सिस्टम की बात करेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। एवरी टाइम जब आप कोई चीज swallow करते हो, जैसे आई जस्ट swallowed my saliva, तो एवरी टाइम आप कोई भी चीज swallow कर रहे हो, पानी है या कोई नवाला कोई खाना है, तो आपका क्या होता है, आपका सांस 1 या 2 सेकंड के लिए रुकता है, ठीक है, और उस टाइम आप सांस नहीं ले रहे हर सिंगल swallow में। और ये इसलिए होता है ताकि आपकी एयरवेज या जहां से आप सांस लेते हैं, जो आपकी सांस की नालियां प्रोटेक्ट किया जाए, उनमें खाना ना जाए और खाना वहां चला जाए जो खाने की नाली है और आपके मेरे तक पहुंच जाए। क्योंकि और इसमें क्या होता है कि आपका खाना मुंह से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बंद होते हैं, उसके ऊपर एपिग्लॉटिस आता है वो बंद करता है, आपके एयरवेज प्रोटेक्ट होते हैं और खाना आपके थ्रोट से होता हुआ, आपके एस्ophagus से होता हुआ आपके स्टमक पे सेफली चला जाता है। बट अगर आपकी यहाँ पे अगैन कोई मसला आ जाए, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, तो ये सिस्टम आपका आपकी ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज हुई भी है, आप सांस प्रॉपरली ले सकते, तो आपका swallow करने की एबिलिटी भी उस टाइम पे इफेक्ट होगी, क्योंकि swallow करना और ब्रीथ करना दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी जिसमें ब्रीदिंग में मसला आ रहे हैं, कोई ऐसी जैसे खांसी है या नजला जुकाम है, तब भी आप परहेज, मतलब बहुत तेज तेज मत खाएं, आप स्मॉल पोर्शन में खाएं, क्योंकि और थोड़ा खाएं, वेट करें, फिर थोड़ा खाएं, वेट करें, ताकि क्योंकि आप एक ऑलरेडी फिटीक है आपको बीमारी के, उसके साथ साथ ये जो बार बार हमें सांस रोकना पड़ता है निकलने के टाइम पे, उससे भी आप ज्यादा थक जाते हैं और फिर आपका मसला और ज्यादा बढ़ सकता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा पोर्शन खाएं, वेट करें, फिर थोड़ा सा पोर्शन खाएं एंड वेट करें। नेक्स्ट we'll move to the cognitive part. Sorry, we'll first move to discuss the gastrointestinal part. उसमें जैसे कि आपको ये पता है कि आपका खाना मुंह से फेरिंग से होता हुआ आपके एसोफेगस में जाता है, जो आपके खाने की नाली होती है, और फिर वहां से आपका खाना मेदे में जाता है। और जब आपका खाना वंस स्टमक में चला गया है, तो स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं जिसके साथ आपका खाना मिक्स होता है, और आपका खाना जब भी निकलते हैं तो आपका खाना एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, और एक डायरेक्शन में जाते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन कभी कभार ये खाना आपका बाय डायरेक्शनली भी हो जाता है कि आपके स्टमक में गया, मिक्स हुआ एसिड से, और वो वापस आपके खाने की नाली से एसोफेगस उसको कहते हैं, उसके ऊपर आया, फेरिंग से होता हुआ आपका चला गया एयरवेज, सांस की नाली में चला गया, और वो ड्रिप जो एसिड स्टमक में थे उससे मिक्स होके खाना जब ऊपर की तरफ आया तो एसिडिक हो गया, और वो आपके फिर सांस की नाली में या फेफड़ों में वो चीज ट्रिप होने लग जाती है। वो चीज इतनी खतरनाक होती है, वो ऐसी एक चीज होती है कि आपकी जैसे कोई फेफड़ों में, आपकी सांस की नाली में कोई एसिड, कोई तेजाब डाल रहा, इट्स वेरी टॉक्सिक। तो अगर आपको कोई रिफ्लक्स का मसला है कि आप जब खाना खाते हैं उसके बाद आपको अजीब तरह से बर्प टाइप होते हैं, आपको होता है आपका खाना वापस आ रहा है, आप फंसा हुआ है यहाँ पे खाना, तो ट्राई करें कि आप ज्यादा एसिडिक खाने मत खाएं और जरा सिंपल ग़िज़ा आप फोकस करें। फोर्थ सिस्टम जो है हमारा वो है कॉग्निटिव। जैसे कि आपको नाम से ही पता चला, इट्स अबाउट योर थिंकिंग। जब आप खाना खा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, आपके दिमाग में आपके बहुत कुछ चल रहा होता है, आप निकलना, आपकी swallowing और थिंकिंग एक दूसरे से बहुत रिलेटेड। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, इज इट गुड फॉर यू और नॉट। कॉग्निटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जितने भी मैसेजेस दिमाग को जा रहे होते हैं, वो सब कुछ जो ये सारी चीजें हो रही हैं, वो दैट इज ट्रिगर्ड बाय द सेंट्रल कमांड ऑफ द ब्रेन। और ये सारे क्या क्या मैसेजेस ब्रेन को जा रहे होते हैं, अगर आपने कुछ डाला तो कॉग्निटिव सिस्टम में
आपको मैसेज आएगा ब्रेन को कि अच्छा देयर इज समथिंग इन योर माउथ, एंड फिर ये भी पता चलेगा इज इट स्वीट, सावर, खट्टा है, मीठा है, सॉल्टी है, क्या है। अगर लेट्स सपोज इज इट समथिंग जिसको चबाने की जरूरत है, या इज इट जस्ट अ लिक्विड जिसको आप सीधा निकल रहे, सारे मैसेजेस ब्रेन को जा रहे होते हैं। उसके साथ साथ ये मैसेज जा रहे होते हैं कि इसके लिए ज्यादा चबाने की जरूरत है, आप आराम से भी चबाएंगे तो ये चीज आप आराम से निकल सकते हैं, या फिर आपको अब इसको पीछे की तरफ धकेलना है, गले की तरफ, तो इसको ज्यादा जोर से आपको पुश करने की जरूरत है, आराम से पुश करेंगे तो ये आराम से निकला जाएगा। इस सिस्टम में ब्रेन को ये भी मैसेजेस जाते हैं कि अब जो है, जो खाने की नाली होती है उसको कब खुलना है और कितना खुलना है, कि आपने कितना बड़ा नवाला लिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका नवाला छोटा है तो छोटी ओपनिंग होगी, आप खाने की नाली की, अगर बड़ा है तो ज्यादा बड़ी ओपनिंग होगी। इसके साथ साथ जैसे हमने रिफ्लक्स की बात की कि अगर रिफ्लक्स आ रहा है आपका एयर बेस की तरफ जा रहा है तो ये भी मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं और फिर प्रिवेंट किया जाता है एयर बेस को फ्रॉम द reflux to enter into the airways. So ये सब चीजें आपकी इस cognitive system and it's an amazing system. Next system जो है that is the neurological system. ये जो भी हमने सारे मैसेजेस की बात की, ये सारे सिग्नल्स ब्रेन को जा रहे होते हैं नर्व्स के, और वो नर्व्स में अगर कोई मसला होगा तो कोई सिग्नल्स नहीं जाएंगे, बहुत कम सिग्नल्स जाएंगे, तो और उससे वो चीज बहुत खतरनाक होती है। इसी तरह आपकी एस्पिरेशन हो सकती है और भी बहुत खतरनाक चीजें हो सकती है। सो ये 5 सिस्टम्स थे जिसमें हम डिस्फेजिया स्वॉलिंग प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, और इनमें अगर कोई ब्रेकडाउन आ जाए या इनमें कोई मसला आ जाए तो आपको स्वॉलिंग डिस्फंक्शन हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज 5 फेजेस ऑफ डिस्फेजिया। और क्योंकि डिस्फेजिया इज समथिंग, या स्वॉलिंग हमारा जो प्रोसेस है इट इज समथिंग जो जिगसॉ पजल है, उसमें अगर एक भी पीस, और अक्सर हम आप जब डायग्नोसिस दे रहे होते हैं कोई ना कोई पीस मिस हो जाता है क्योंकि हमें डिटेल उसकी एक नॉर्मल फंक्शनिंग स्वॉलिंग की नहीं पता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ स्वॉलिंग, ताकि आप अपने पेशेंट के केस में डिफाइन आपको पता चल सके कहाँ पे मसला आया और उसको कैसे डायग्नोस करना। So that was all from my side. Now I'll ask Fariha to discuss her part. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Sahar Ilyas, for this excellent explanation of all the 5 subsystems of dysphagia. So it was like the way she presented, it was just like so easy for me. Like it was a refresher for me as well. So Ms. Fariha Bukhari, can you please start? Okay. So excellent explanations are. So we are just going toward the next part of our webinar, in which we will be discussing the problems our dysphagic clients would suffer and why they are caused. So how common is dysphagia? Adults make almost 85% of the individuals diagnosed with dysphagia, but still we need more research in our country because there are a small portions of the pilot studies जो normally पाकिस्तान में हो रही हैं different places पे, और जिससे हम लोग prevalence जो है dysphagia की find out करते हैं, but it needs to be compiled and it needs to be elaborated in a very extensive way. इसको ज़्यादा बड़ी population पे हमें extend करना है still, लेकिन जितनी भी पायलट स्टडीज हैं उनसे हमें थोड़ा सा जो रेट या रेशियो मिल रही है, दैट इज द परसेंटेज। तो सबसे पहली चीज कि डिस्फेजिया के सिम्टम्स एंड साइंस जो मिस साहर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं हमें, इसी के साथ साथ अगर हम इसके ट्रांजिट जो फेजेस हैं उनको अगर वी केप्ट इन माइंड और उसके साथ हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, तो एविडेंस बिहाइंड कीपिंग ए क्लीन माउथ इज मैसिव। अच्छा, नॉर्मली हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, और क्लीनिंग हैबिट्स में ये है कि नॉर्मली वी टेक हमारी जो जितनी भी ओरल हाइजीन है या डेंटल हाइजीन है उसके लिए मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं। बहुत कम लोगों की परसेंटेज ऐसी है जो ट्वाइस अ डे बिफोर नाइट या बिफोर स्लीपिंग टूथ ब्रशिंग की जिनकी हैबिट होती है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर लोगों की यही हैबिट है कि मॉर्निंग में उठकर उन्होंने ब्रश करने हैं एंड दे हैव टू गो टू देयर वर्क या somewhere else.
तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा जिसको सोचने की जरूरत है और जिसको सबसे ज्यादा पॉन्डर अपॉन करने की जरूरत है, वो है हमारी ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, और ओरल हाइजीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम आवर ओरल कैविटी, जिसमें सबसे पहले वी आर हैविंग एन आर्टिकुलेटर्स लाइक टीथ, टंग, पैलेट। इन चीजों को हम क्लीन रखेंगे, इनकी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, तो हमारे बाकी सिस्टम्स जो हैं वो ओरल पे डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द फूड फ्रॉम आवर ओरल कैविटी. So what we are eating, it will affect our body. Either we are eating good or either we are eating bad. और after eating हमारी क्या ऐसी cleanliness habits हैं जो इन चीजों को प्रमोट कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ वे कि हमारी ओरल हाइजीन सिर्फ इतनी है कि हमने ब्रश कर लिया और हमारी ओरल हाइजीन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया. ऐसा नहीं है. ओरल हाइजीन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, ओरल हाइजीन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अगर हम फॉलो कर सकते हैं so that we can attain a good lifestyle, good overall immunity and health. So can you please move to the next slide? So poor oral health can increase the risk of aspiration pneumonia and एक चीज जो यहाँ पे आप सबको जानने की जरूरत है कि जो एस्पायरेशन नमूनिया है, नॉर्मली हम लोगों का ये ख्याल होता है कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं या कोई ऐसा फूड पार्टिकल है जो हमारी लंग्स या रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर पास कर रहा है, एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एस्पायरेशन नमूनिया के सिम्टम्स आते हैं, इन्फेक्शंस, वी कॉल इन्फेक्शंस, और इसी तरह हम अपने साइंस और सिम्टम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. लेकिन ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? हमारी ओरल हेल्थ से. और जितने लोग नॉर्मली अपना फूड जो है वो उसको केटर करते हैं, फूड को खाते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं है कि खाना खा रहे हैं जिसमें डिफरेंट कंसिस्टेंसीज खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेमी सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल्स खा रहे हैं, लिक्विड इनटेक ले रहे हैं, सिर्फ अकेला ये सब कुछ निमोनिया को कॉज नहीं करता. जो नॉर्मली हम लोग आम लोगों के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली जो निमोनिया है या एस्पायरेशन निमोनिया जो है वो जस्ट हम खाना चूंकि खा रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, या जो हम लिक्विड इनटेक ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिस गाइडेड रूट पर जा रहा है, रेस्पिरेटरी रूट पर जा रहा है और निमोनिया कॉज कर रहा है. बेसिकली ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है हमारी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज पे. एंड ये वो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे फूड आइटम्स के साथ सीक्रेटली हम जब कुछ खाते हैं, अगर वो अनहाइजीनिक है या हमें नहीं पता दैट कि ये अनहाइजीनिक है या नहीं है, एंड इट मिस्टेकली एंटर्ड इनटू आवर माउथ, और ये बैक्टीरिया बेसिकली हमारी ओरल कैविटी से हमारी रेस्पिरेटरी कैविटी में चला जाता है और वहां पर जाकर निमोनिया के सिम्टम्स कॉज करता है. और थ्रू अकॉर्डिंग टू एशफोर्ड बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें इसको क्लियर करने की जरूरत है. एस्पिरेशन निमोनिया बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है फ्रॉम द थ्री थिंग्स. दीज आर थ्री पिलर्स. हमें ये थ्री पिलर्स अगर समझ में आ जाएं तो हम एस्पिरेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. एंड एस्पिरेशन इज द प्रोसेस के जिसमें हमारा फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी गट या हमारी फूड सिस्टम या फूड पाथवे के अंदर दाखिल होने की बजाय हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर हो जाता है. तो तीन चीजें मिलके एस्पिरेशन निमोनिया को कॉज करती हैं. इनमें से कोई एक चीज भी अगर मिसिंग होगी तो इट विल नॉट कॉज द एस्पिरेशन निमोनिया. ये कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं. सबसे पहले जी हमारा इम्पेयर्ड हेल्थ स्टेटस. अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि वी आर ओवरऑल फिट, वी आर ओवरऑल हेल्दी, और हमारी हमारी सेहत बिल्कुल अच्छी है, वी आर वर्किंग, वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ इन अ वेरी गुड मैनर. लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंटली भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो स्टेबल नहीं है. तो इम्पेयर्ड हेल्थ स्टेटस, इम्यूनिटी एंड बॉडी कंडीशनिंग रेफर्स कि हम हमारी जो बेसिकली इम्यूनिटी की कंडीशन है या हमारी बॉडी कितनी इम्यून है टुवर्ड्स द डिजीजेस और वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है किसी भी चीज को. कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो बहुत कम फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उन पे पॉन्डर अपॉन कर रहे होते हैं, या बहुत कम फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को जल्दी डिस्टर्ब नहीं करते. लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी इन्फेक्शंस को कॉज कर देते हैं. इसका मतलब होता है कि उनकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ और इम्यूनिटी जो है वो एक नॉर्मल क्राइटेरिया से नीचे जा रही है.
That's why they are catching the infections and that's why they are having the disease symptoms more reflective and बहुत ज्यादा नजर आते हैं. इसी के साथ impaired airway protection में हमारा जो laryngeotracheal aspiration system है, जो हमारा ट्रैक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, उसका फंक्शनल प्रॉब्लम आ रहा है और फूड आइटम जो है वो मिसगाइडेड हो रहा है और किसी दूसरे पाथवे में जा रहा है, that thing also contribute to the aspiration pneumonia. And impaired oropharyngeal environment. Impaired oropharyngeal environment का मतलब ये है कि हमारी oropharyngeal cavity के अंदर जो small places हैं, हमारे food articles या बैक्टीरिया वहां पर कहीं साइड्स पर जाकर पुल अप हो रहा है या accumulate हो रहा है और हमें ऐसे देखने में अंदाजा नहीं हो रहा इस चीज का. That's why ये 3 पिलर जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो एस्पिरेशन निमोनिया कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फीवर, डिफरेंट सिम्टम्स जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं पेशेंट के अंदर, ये वो चीजें हैं जो 3 पिलर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. तो दिस इज द थिंग, ये वो जगह है जहां पर आके अब ये सारा तो सिस्टम हमने, ये डिजीजेस हमने सारी कंट्रीब्यूट पढ़ ली, इनको देख लिया, समझ लिया. यहाँ पर आता है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है और अवॉइड करने के साथ साथ ऐसी कौन से स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एस्पिरेशन निमोनिया और इन सब चीजों से बच सकते हैं, हम इनको अवॉइड कर सकते हैं. The best way to decrease the amount of bacteria in the mouth is brushing the teeth, palate and tongue with a toothbrush and a toothpaste. सिर्फ टूथब्रश और टूथपेस्ट ही काफी नहीं है, इसके साथ और बहुत सारी हमारी ओरल हाइजीन की टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको अगर फॉलो किया जाए तो भी हम अपनी ओरल हाइजीन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. जिसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसेंटली डिस्कवर्ड स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं, जिसके लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं या जिसके लिए एक रिसेंटली जो लॉन्च हुई है मार्केट में, पाकिस्तान में एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं दैट इज अ टंग स्क्रैपर. और टंग स्क्रैपर एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसको अगर आप डेली अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो आपकी ओरल हाइजीन जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकती है. अच्छा, अब टंग स्क्रैपर बेसिकली क्या करता है, जैसे नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जी हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाता है, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट नहीं होता. बेसिकली कुछ ऐसी वेस्ट आइटम्स या कुछ ऐसी अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स एक लेयर बना देती हैं हमारी टंग के ऊपर, जिसको हम कहते हैं बायोफिल्म. बायोफिल्म बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारी बैक्टीरिया को एक्यूमुलेट करती है, अनहाइजीनिक जर्म्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. तो ये टंग पेपर बेसिकली इस चीज को रिमूव करता है और थ्रू ब्रश और भी किसी और डिवाइस से हम इसको इंस्ट्रूमेंट से नहीं रिमूव कर सकते. टंग पेपर इज द सेफेस्ट वे, जो डिफरेंट वैरायटी में आपको अवेलेबल भी होते हैं पाकिस्तान में. टंग स्ट्रेपर से बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इसको ग्लाइड अपॉन करते हैं अपनी टंग के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर, और जितनी भी अननेसेसरी बायोफिल्म की लेयर है वो रिमूव हो जाती है. जब वो रिमूव हो जाती है तो इन कॉन्जुगेशन विद द टूथब्रश जो हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी तो आपकी ओरल हाइजीन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन हो सकती है. एक छोटा सा स्निपेट है फ्रॉम a YouTube video about the tongue scraper. You can watch it and then you will having a more good idea. We cannot hear. Misha, can you please unmute your mic? Misha, we can't hear you. आप प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिएगा. I will play that video again. Yeah, sure. Yeah. लेस स्टील का मटेरियल है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. यू कैन जस्ट पुट इट इन योर टंग इन द मॉर्निंग व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, और आपने इसको अपनी टंग के ऊपर ऐसे ग्लाइड करना है. जब आप ग्लाइड करेंगे तो Yes. So tongue scraper जो है Yeah, continue. Yes. तो टंग स्क्रैपर जो है लोगों को ये लगता है कि शायद ये डिवाइस जो है इट वुड बी वेरी
हार्ड ऑन आवर माउथ या ओरल कैविटी में, तो ये बिल्कुल सेफ है। आई एम पर्सनली यूजिंग दिस थिंग इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। और एक चीज देखें, जब भी हमने कोई चीज रिकमेंड करनी होती है तो मेरे ख्याल में दैट स्टार्ट्स विद योर ओन थिंग, कि आप अपना एक्सपीरियंस अगर बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और लोगों को वो चीज समझ भी आएगी। तो मैं पर्सनली इस डिवाइस को इस ऑलमोस्ट 2 मंथ से यूज कर रही हूँ, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे टंग स्ट्रेपर की लगी है, इट्स सेफ टू यूज, इट डजंट हार्म, इससे कोई पेन कॉज नहीं होती है। और इसी के साथ साथ कुछ अरसे से मैं ये महसूस करने लग गई हूँ कि मेरी जितनी भी डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस थी, स्टमक इन्फेक्शंस थी, उनकी प्रेवलेंस, उनकी रेशो थोड़ी कम हो गई है। और इसी के साथ साथ वन द टॉप ऑफ द लिस्ट थिंग इज द टेस्ट अप्रिसिएशन ऑफ द फूड। मुझे पहले ही ऐसा लगता था कि जैसे मैं डिफरेंट फूड के डिफरेंट जो अप्रिसिएशन है या डिफरेंट टेस्ट हैं उनको इतना इंजॉय नहीं कर सकती, लेकिन रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग माय फूड, और टेस्ट अप्रिसिएशन थोड़ी इनहेंस हो गई है उसका। यू कैन से कि खाने को मैं ज्यादा इंजॉय करके अब खा भी सकती हूँ, और उसका जो जायका है वो ज्यादा अच्छे तरीके से महसूस भी कर सकती हूँ। और मेरी ओरल कैविटी की खास तौर पे दांतों की इन्फेक्शन, गम्स की इन्फेक्शन भी पहले से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सबको भी ऐसी ही कोई चीज अपनी जिंदगी में शामिल करनी है, एक पॉजिटिव हैबिट, खास तौर पे पॉजिटिव ओरल हाइजीन में अडॉप्ट करनी है, तो यू कैन ऑल्सो हैव दैट प्रोडक्ट इन योर होम। So Yes. Ms. Fariha just beautifully explained like how she uses it. So I'm sharing the video of my client over here, my patient over here. So we have taken the consent to share this video. Watch it, and then I will explain like how it you can use it with your clients. The sides, it helps in clearing the sides as well, the blade of the tongue, open wide, and the back of the tongue as well. See, you can see it all through. So in this particular video, you have seen that you can not only use this with a normal patient, but it's like tremendously. I've seen that I've recommended it to like almost 50 clients of mine, 50 patients of mine, and all with an NG tube, and the results are amazing. And you can see that this particular client was admitted into a certain tertiary care hospital. He didn't receive any oral care. He didn't have any swallowing difficulty. However, ये हुआ कि उनकी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके नतीजे में इतना जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह की लेयर्स डेवलप हो गई थी उनकी पैलेट पे भी, उनकी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल्स पे भी, जितनी भी पीछे का एरिया था सब लाइक इट वाज चोक। दैट्स व्हाई उनको एनजी ट्यूब पे जाना पड़ा। सो द मिनट आई सॉ हिम एंड आई वाज जस्ट लाइक he needs one thing, oral hygiene. And after taking care of oral hygiene for 2 weeks, we removed his NG tube because the swallowing function was good. And how did we remove it? We conducted a modified barium swallow as well in order to be sure that whatever our hypothesis is, we are sure about it. So over to you, Faria. Yes. एक चीज मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहूंगी कि while dealing with this dysphagic client, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओरल हाइजीन को इतना ज्यादा टाइम नहीं देते या उसको इतनी अटेंशन नहीं देते, बिकॉज हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हमने पेशेंट को फ्रॉम द फूड पाइप्स, हमने उसको ट्रांजिशन फेज पर लेके आना है कि वो अपना फूड आइटम्स जो है वो ओरल पाथवे के थ्रू ओरली स्वॉलो करना शुरू करें। तो रादर हम मैन्योवर्स अप्लाई करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं जिससे वो फूड आइटम्स को ओरली लेना शुरू करें, उसका इंटेक शुरू करें। लेकिन उससे पहले ये स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं, शायद ये चीजें हम इन पे इतना ध्यान नहीं करते हैं, जिसमें से ओरल हाइजीन इज द फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीजें आगे हमें कंट्रीब्यूट करेंगी व्हाइल ट्रीटिंग आवर पेशेंट। और डिस्फेजिया की डोमेन में काम करने के लिए जरूरी है कि इनिशियली हमें ओरल हाइजीन पे अगर हम थोड़ा सा काम कर लें और थोड़ा सा वक्त दे दें पेशेंट को, कि जितना ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी हाइजीन डेवलप हो जाती है, जितना ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, हमारे आगे के प्रोसेसेस, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह टूथ ब्रशिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग निमोनिया पेशेंट्स ऑन द एग्जैक्टली ऐसे पेशेंट्स जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स जिनको ड्यू टू एनी डिजीज, ड्यू टू एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको शिफ्ट करना पड़ता है उनकी ओवरऑल हेल्थ की स्टेबिलिटी के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, सिर्फ उन पेशेंट्स पे अगर हम डेली बेसिस पे टूथ ब्रशिंग की एक्टिविटी अप्लाई करना शुरू कर दें तो उनके अंदर भी निमोनिया ऑलमोस्ट 50% जो है वो कम हो जाता है। जैसे नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल्स में भी ये
प्रैक्टिस यूज होती है कि पिंक स्वैब से हम क्लीनिंग करते हैं ओरल कैविटी की, जो एक कॉमन प्रैक्टिस है। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रैक्टिस जो है वो गलत है, दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इनिशियली पेशेंट को केटर करने के लिए, पेशेंट की बेहतरी के लिए हमें जो भी चीज अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी अप्लाई करनी पड़ती हैं वो हम करते हैं। लेकिन आई वुड ऐड कि अगर हम इसके साथ टूथ ब्रशिंग की एक्टिविटी या टूथ ब्रशिंग पेशेंट पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो और ज्यादा चांसेस एस्पिरेशन निमोनिया के कम हो सकते हैं। कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट? Yeah. तो डिस्फेजिया के को से बचने के लिए, डिस्फेजिया के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए ऐसी क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या हम पेशेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं एज ए थेरेपिस्ट, एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। कुछ ऐसी बिहेवियरल अप्रोचेस हैं जो पेशेंट्स के साथ साथ हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अडेप्ट कर लें इन चीज़ों को, तो ही कैन बी सेफर, वो और ज्यादा बच सकते हैं डिस्फेजिया या ऐसी इससे रिलेटेड स्वॉलोइंग डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से। तो ऑल्टरनेट स्माइल बाइट्स विद स्मॉल सिप्स। अगर हम अपने ईटिंग हैबिट्स में ये चीज ऐड कर लें कि हम स्मॉल बाइट्स लें जिनको हम ज्यादा अच्छे तरीके से च्यू कर सकें, बोलस को अच्छे तरीके से स्वॉलो कर सकें, और इसके साथ छोटे छोटे स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर लें सो दैट द रेजिड्यू कैन बी इन आवर कैविटी, रेजिड्यू जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट ना करे और खाने के साथ साथ रेजिड्यू जो है वो अपने पाथवे पर, अपने डेस्टिनेशन पर जाता रहे। इसी के साथ स्मॉल बाइट्स, स्मॉल सिप्स, दिस इज अ बिहेवियरल अप्रोच जो आपकी ईटिंग हैबिट में इंक्लूड होनी चाहिए टू प्रिवेंट यू फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ swallowing डिफिकल्टी। लिक्विड वॉश टू क्लियर ओरल फ्रिंजल वेलिकुली रेजिड्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वाइल ईटिंग जो रेजिड्यूज हमारी डिफरेंट ओरल कैविटी की डिफरेंट जगहों पे, फ्रिंजल कैविटी की डिफरेंट जगहों पे एक्यूमुलेट कर सकता है, तो वाटर इनटेक विल वॉश इट। वाटर इनटेक इन चीजों को वहां पे एक्यूमुलेट होने से बचाता है और फर्दर मोर एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि ये चीज जो है हम साथ साथ स्टार्ट कर सकें। पेशेंट को ये बताया जाए कि ड्राई स्वॉलो करें, और ड्राई स्वॉलो का मतलब ये है कि विदाउट एनी फूड इनटेक, विदाउट एनी लिक्विड एंड एनीथिंग। इसके साथ साथ रेजिड्यू को क्लियर करने के लिए स्वॉलो यानी कि खाली हम स्वॉलो करें, कोई चीज खा के नहीं, इससे भी हमारा जो रेजिड्यू है हमारी कैविटी, हमारे पैसेज में कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड मल्टीपल स्वॉलोज भी अगर हमें लेने की जरूरत है तो हम मल्टीपल स्वॉलो भी ले सकते हैं अपने खाने के दौरान में, ताकि कोई रेजिड्यू एक्सेसिवली अगर कहीं एक्यूमुलेट हो भी रहा है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। Thank you so much. Thank you so much, Ms. Faria Bukhari, for this excellent explanation of your part. And we love about that how you explain the oral hygiene part. And moving forward, like the ending of our webinar session, like the end part, like management, like how to manage it. But before I start, how to manage it, just answer these questions. Let's just think for like 2 minutes. But first, answer the following questions. Yeah, what is the most important skill a clinician should learn / master before managing dysphagia? So think about it. I'll answer it in like 10 seconds. Okay, so the answer is that you need to master the anatomy and physiology, and because if your anatomy and physiology is good, आपको पता होगा कि जिस्म के अज़ा जो आप ट्रीट करने जा रहे हैं और जो मसल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं और क्या उनके नाम है और क्या क्या जगह है उनकी, तभी तो आप अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से सबसे ये पूछना चाहती हूँ, जो भी प्रोफेशनल इस टाइम देख रहे हैं ये वेबिनार या सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, कि why all patients with swallowing difficulty are advised to swallow in a chin down posture? कि हर हमारे पास पेशेंट आता है, मैं ये कहती हूँ कि मैं जिस भी पेशेंट को for example, if I am meeting that particular client or a patient from different area in the world, even US में भी ये practices हैं कि still उन लोगों के भी जब भी आप आते हैं कि चिन डाउन दे दिया गया, भाई क्यों चिन डाउन दिया गया, एटलीस्ट एक्सप्लेन। अगर किसी पेशेंट को मैं कहती हूँ कि चिन डाउन की जरूरत नहीं है तो आप क्यों चिन डाउन दे रहे हैं? मूविंग फोर्थ, इसका आंसर अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ ये आखिरी वाला सवाल है, ये सिर्फ आप लोगों के सोचने के लिए कि आप लोग सबको क्यों चिन डाउन पोस्चर देते हैं, ठीक है? सो कमिंग बैक to continuation of this my part, like how do we assess a patient with swallowing dysfunction? तो बेसिकली 3 तरीकों से हम असेस कर सकते हैं, क्लिनिकल स्वॉलो एग्जाम, गोल्डन स्टैंडर्ड, प्लैटिनम स्टैंडर्ड। मैंने बाकी गोल्डन स्टैंडर्ड और प्लैटिनम स्टैंडर्ड मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि मैं आपको बता सकूं
कि आजकल जो वर्ल्ड वाइड इन अमेरिकन लिटरेचर और वेर एवर इन द वर्ल्ड यूरोपियन डिस्फीजिया सोसाइटी में किस किस तरह से टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, बिकॉज वी आर इन द फील्ड, वी आर स्टिल इन अ, जिसको फैंसी वर्ड अंग्रेजी में कहा जाए बर्जनिंग फील्ड, ये अभी ग्रोइंग फील्ड है। तो अभी तक हर आए दिन कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट आती रहती है। दैट्स व्हाई whoever is assessing the patient with swallowing dysfunction should be updated with the evidence based research. तो अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि क्लिनिकल स्वॉलो एग्जाम इज द फर्स्ट वन। गोल्डन स्टैंडर्ड में क्या आता है? गोल्डन स्टैंडर्ड पहले कहा जाता था कि फीस, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन फॉर स्वॉलोइंग और मॉडिफाइड बेरियम ऑफ बेरियम फॉर स्वॉलोइंग, जिसको हम VFS भी कहते हैं, वीडियो फ्लोरोस्कोपी, ये गोल्डन स्टैंडर्ड में आते हैं। लेकिन अब प्लैटिनम स्टैंडर्ड क्या कहता है ना, प्लैटिनम स्टैंडर्ड की भी तो बात हो रही है यहाँ पे। प्लैटिनम स्टैंडर्ड कहता है टू गिव राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम टू द राइट पेशेंट। सो दिस इज द प्लैटिनम स्टैंडर्ड। और मुझे ये प्लैटिनम स्टैंडर्ड इसलिए अच्छा लग रहा होता है कि नीड ऑफ द आवर को देखें और पेशेंट की सिम्टोमोलॉजी को समझें। लाइक इफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट नीड्स सर्टेन काइंड ऑफ अ टेस्ट। अब मेरे किसी क्लाइंट को नाक में जो डलवाने से, अगर नाक में उसने नहीं डलवाना, फीस नहीं डलवाना और उसको उलझन हो रही है, और याद वो उसको कैंसर रेडिएशन से इतना हो रहा है कि या जिसको नाक में नहीं डलवाना वो फीस का कैंडिडेट नहीं है, और जो भी कैंसर का पेशेंट आया जिसको इतनी रेडिएशन हो चुकी है, मैं उसको वापस मॉडिफाइड बेरियम में तो नहीं बिठाऊंगी ना, एक्स्ट्रा रेडिएशन हो रही होगी। तो प्लैटिनम स्टैंडर्ड इस पे काम करता है कि आप जो है सही वक्त पे सही जगह सही डिसीजन लें। नेक्स्ट क्लिनिकल स्वॉलो एग्जाम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसका पार्ट 2 ऑफ द वेबिनार विल बी हाउ टू thoroughly perform clinical swallow exam will be the next one, because we are already short on time and we have to cover like we had to give you as much as we can. So just a brief discrimination कि clinical swallow exam क्या होता है। एक speech language pathologist patient का जो medical chart होता है उसको review करता है, और फिर उसके बाद उसकी cranial nerve exam जो आपकी feeding और swallowing और speech में use होती हैं उनको assess करता है thoroughly। इसकी जो explanation है, thorough explanation, वो part 2 of this webinar series होगा। Coming fourth, नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारा ये है कि वीडियो फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ जो स्वॉलोइंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड बेरियम ऑफ स्वॉलो भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी कॉजिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें जो पेशेंट को डिस्फेजिया सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, या हम आइडेंटिफाई कर सकें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। क्योंकि हम लोग ये वीडियो फ्लोरोस्कोपी को जो फीस इसीलिए करते हैं ताकि हम उसी के ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम डिसाइड कर लें पेशेंट को, ओके so the aspiration is starting. I have seen in my practice that in my early years when I was a novice, still I am a learner, but when I was a novice I didn't know anything, कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो जब aspiration जैसे ही होती थी, I have seen professionals who just stop the test, even the technicians as well. But when I did my fees certification back in 2019, so then John Ashford told me, like, the minute aspiration starts happening is where your exact test starts. जब एस्पिरेशन होगा तभी तो आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी हर्निया का ऑपरेशन कराना है, जब तक आप सर्जरी नहीं कराएंगे आपको कैसे पता चलेगा? तो जब तक पेशेंट एस्पिरेट नहीं कर रहा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि जो है वहां पे हमने ट्रीटमेंट लाइक उसको मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पेशेंट अभी जैसे ही उसको लिक्विड पे चोकिंग होने लग गई है और एस्पिरेशन स्टार्ट हुई है, तो मैं फौरन से like looking at the picture, clear picture कि इसकी anatomy physiology को देखते हैं, okay so now he has a like pooling in the vallecula, तो अच्छा चलो ठीक है मैं chin down करती हूँ। मैं अगर weakness on the left side है तो मैं head tilt करवा के देख लेती हूँ। तो different things. Let's moving forth, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी, because there is a lot to take in at the moment. So in this particular video, this video is taken from Step YouTube channel. Both videos, इसमें मैं सिर्फ आपको ये छोटी सी वीडियो है, Dr. E.N.S. Humbert. Whatever my certifications are from is from this particular lady, Dr. E.N.S. Humbert, and I read researches, but she is the guru of swallowing. Whoever wants to study, you can just sign up for this. So in this particular video, in this first shot, you can see that normal swallow is happening. The food is not going into the trachea. So look at this. This is normal swallowing on a modified barium swallow. In abnormal swallow, now focus on this one. The food enters into the trachea. So we have seen the clear explanation of whatever is happening, and like there is a clear distinction between normal swallow and abnormal swallow. Now let's look at one more video that will keep our brain thinking that
we need to change our practices, buddy. We need to change our practices. ये एक हेल्दी कॉलेज स्टूडेंट और एक जो एक डिस्पेजिया क्लाइंट जिसको 20 थेरेपी सेशंस दे दिए गए हैं उनके बीच का कंपैरिजन है एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट कि कौन सा नॉर्मल है since you have to watch hundred of videos frame by frame slowly to just discriminate between a healthy and a like brainstem stroke, but it all looks the same. So don't treat normal swallowing. Learn more about anatomy and physiology. You can just sign up for STEP. And then moving forth, अभी जैसे मैं फीस की बात कर रही थी, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन फॉर स्वॉलोइंग, अगर आप कहते हैं कि आपकी फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं है, मैं आपको कहती हूँ आप सर्टिफाई हो, बाहर से जाके सर्टिफाई हो, आप पाकिस्तान में ट्रेनर्स को बुलवाएं. एंड इन द फ्यूचर we are planning to just conduct these kind of workshops so that each one of you, like we want to train each one every individual in these kind of instrumental assessments so that we can make speech therapy easy for all. अब जिसका इसका पर्पस ये है कि जब फाइबर ऑप्टिक बिल्कुल पतला सा फाइबर होता है, ये हमने अपने ऊपर भी करके देखा, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने अंदर भी कैमरा खुद से इंसर्ट करते हैं, नाक के अंदर वो पतला सा जाता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, जस्ट लाइक अ बी इज गोइंग इनसाइड योर नोज और छोटा मच्छर इज गोइंग इनसाइड योर नोज. तो जैसे 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 आप करते जाते हो तो यहाँ से पास होते होते ये आपकी वोकल फोल्ड के ऊपर थोड़ा सा लटक रहा होता है, जो टेलीस्कोप होता है ना, तो और व्यू कुछ इस तरह का होता है. दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज फ्रॉम केल्सी डे CCSLP प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट. सो बेसिकली इट्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड न्यू एंडोस्कोपिस्ट, कि आप जब स्कोपिंग करना सीख जाते हैं, स्कोपिंग इज जस्ट लाइक ड्राइविंग, जो ड्राइविंग करना सीख गया उसको स्कोपिंग भी बहुत, स्कोपिंग इज द इजीएस्ट पार्ट, द डिफिकल्ट पार्ट इज टू एनालाइज इट. ठीक है, आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे? सो आप इसीलिए आपको आपकी पता होने चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. दैट्स व्हाई ये इस पूरी पिक्चर में इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप अ वीडियो, आई थॉट लाइक इट्स बेटर टू जस्ट शेयर दिस फोटो व्हिच इज बिकॉज़ अ पिक्चर इज वर्थ देन 1000 words. So it will be up on our YouTube channel. You can just screenshot it in order to memorize the anatomy and physiology, like how it looks. And then अब हम कैसे पता करें कि हम फीस में एस्पिरेशन कैसे हो रही होती है? So हमें कभी भी, जब ये तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन इस पिक्चर में ड्रॉ की हुई है ना, लेकिन शुरू में इनिशियल लाइक अल्हम्दुलिल्लाह I have completed like 200 fiber optic endoscopic examination of swallows, and alhamdulillah I've written 200 reports at the moment since my certifications back in 2020. So I have like back in 2019. So I have like hands-on experience on that, and trust me, it's just like once you are in the go, it's just like driving. So first of all, बहुत जो पहले की like 10-12 like 20 videos में I used to spend like hours and hours just to analyze the results of the assessment, like food कहाँ जा रहा है, because it's very difficult कि जब food जा रहा होता है ये आपके vocal folds में, ये वाला जो area है जिसमें ये line आपको नजर आ रही है, अगर यहाँ चला जाए खाना तो यहाँ पे अगर चला गया तो मैनी प्रेशर, अगर इनसाइड द वोकल फोल्ड चला गया तो क्या है, एस्पिरेशन हो रही है. सो बेसिकली जो 5 part रेटिंग स्केल होता है जो एस्पिरेशन का, उसको भी हम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. लेकिन जब आपके पास रियल लाइफ उस टाइम पिक्चर हो रही होती, नेवर. मैं एक और बात भी कहती हूँ, अगर आप सर्टिफाई हो गए और आपको उस टाइम स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो द पेशेंट इज एस्पिरेटिंग, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स की आदत देखी, वो उसी टाइम कहते हैं ओ माय गॉड द पेशेंट इज एस्पिरेटिंग, लाइक why are you making the other patient anxious, like वो तो उसके तो अंदर वैसे ही है. जब टेस्ट में भी तो मैं डॉक्टर्स को देख रही होती हूँ, पीछे से आवाजें निकाल रहे होते हैं, ओ माय गॉड. लाइक अब कभी आपने सर्जरी में तभी देखा किसी को देखा कि जब किसी डॉक्टर को देख रहे होते हैं, उसे कोई आपका कैंसर पता चलता है तो वो आपको ऐसे कहते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, आपको तो कैंसर ऐसे में तो नहीं होता ना. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाटएवर आई हैव एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट फ्रॉम माय experience so that you don't do it while you are performing it. So next way, your treatment plan is well designed when your assessment is thorough and when you use your critical thinking skills and dysphagia management. So जब आप अपना ये ग्रे मैटर यूज करोगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा हर क्लाइंट डिफरेंट है, जैसे कि मिस सहार और मिस फरिया ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इट्स जस्ट लाइक अ जिगजॉ पजल. So you need to develop good critical thinking skills in order to manage dysphagia, because it's just like a tree, like roots, find out the root cause, then फिर trunk में क्या है और fruit उसका किस तरह का है, that's basically your clinical judgment. You are the best judge, you are the therapist.
Now, in the end, I'm sharing some happy faces because I am also a practitioner of neuromuscular electrical stimulation. Or I wanted to do a separate webinar, but I want to just show you some of my success cases कि हमारी जो facial nerve थोड़ी सी हमारे droop आ जाता है stroke के बाद, तो उसको हम electrical stimulation से just like in 2 sessions ठीक कर सकते हैं. वो कैसे? यहाँ देखिए. This particular client, she came with a complaint of difficult swallowing. So what we did was like after conducting her modified Begum swallow, it was corrected. वो खाना भी खाने लग गई थी, लेकिन उनका ये था कि मेरे ड्रूप है. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इनका हल्का सा स्लाइड सा ड्रूप है. We provided her this placement. ये placement अभी तक still under research है, and I'm plan to do further researches on it. So जैसे कि हमने यहाँ पे placement लगाई उनकी फोरे, उसके बाद you can see the beautiful curve. So as a speech and language pathologist, we can also correct smiles. And you can see over here in this particular, यहाँ पे आप थोड़ा सा deviation देख रहे हैं कि किस तरह से होंठ टेढ़ा था. थोड़ा सा हमने लगाया उनके electrical stimulation उनको थोड़ी सी दी. Within 3 sessions, he had a perfect curve. So with this, I'm asking you all, do you have any further questions? So we are done. So thank you. And please put your messages in the chat box. We will be happy to help you and reach out. So, thank you so much for this. We had like 20 people on board today, but a few of them just I know it's a Sunday, and thank you for joining in. I am very happy with this overwhelming response that we have received. So, अगर आपको कुछ भी सवाल है, I am here. Ms. Sahar Ilyas is here. Ms. Faria Bukhari is here. We are all 3 of us are here. So, if you have any further queries, just tell us. We will be happy to reach you out in person or email us. Ms. Faria, can you write our email address in the chat box? Okay, and I have recently shared. Someone was asking about our YouTube channel name. I have just shared the link of our YouTube channel, जिसको आप easily जहाँ पर जाके आप हमारे channel को भी subscribe कर सकते हैं, and that video will be uploaded on our YouTube channel. जो लोग किसी भी वजह से नहीं देख पाए या catch up on नहीं कर पाए, तो वो हमारे YouTube channel पर जाकर इस webinar को देख सकते हैं. And Ms. Sahar Ilyas, any parting message that you wanted to share with all of our listeners, viewers at the moment? I guess I am not audible to her. Like, just wait for a while. Okay, everyone, I want every one of you to write your email addresses and your name in the chat box so that we can further pre-notify you for our upcoming webinars. As you can see that we are ending this Dysphagia Awareness Month with this webinar. So we would be happy to have your feedback, like how did you like the content, and we will be happy to get back to you with as many content as possible. So we'll be expecting some more suggestions from your side, and we'll be welcoming it. Yes, and